Hello everyone and welcome back to YouTube channel Asha Talks. So in this video I'm going to clear all your doubts regarding Infosys. I know many of the candidates are waiting, okay, for some are waiting for interview, some are waiting for interview results, some are waiting for offer letter, okay, and some are waiting for joining. Okay, so in this video I'm going to clear all your doubt and I will tell you honestly everything in details, what is the real truth, why Infosys is delaying the process and how much you have to wait. Okay, and one thing I have to mention, please don't believe on any channel like random shit anyone is talking like Infosys is sending result for CS, Infosys is sending for diploma. Okay, this is not the scenario. I will talk about everything in details and I will tell you how much to wait and how to do everything. Okay, so please watch the video till the end, and if you find this video informative, please hit the like button and subscribe to our YouTube channel. Okay, so without any further delay, let's start to the video. Okay, so first thing is I know many of the candidates have given exam on August, then June, then now also recently on September 22nd. On 22nd of August, many of the candidates have given exam. Okay, so many of the candidates are waiting for everything. Okay, so first point is Infosys interview not scheduled. Many of the candidates are facing this problem. Yesterday I have made a poll. Okay, and I will show you the poll. Okay, so what is the where is, okay, I will show you. You can see I have raised a community. In the community I have raised a poll like Infosys status check. Okay, so here you can see 29% of the candidates here you can see 763 votes are there, and 29% of the candidates are waiting for interview, and 19 are waiting for interview result, and offer letter 27 percentage are waiting for offer letter. Okay, so here you can see all the like scenario, like every candidates are waiting for the interview result and offer letter and everything like that. Okay, so why is it that ये सब इतना लेट क्यों हो रहा है? दोस्तों पहली बात मैं आपको बता दूं कि इन्फोसिस की जो हायरिंग प्रोसेस है वो कंटिन्यू चालू है। जैसे कि आपको पता होगा जून में फिर अगस्त में, ठीक है, तो इसके वजह से क्या हुआ, बहुत ज्यादा मास हायरिंग हो रही है। और मास हायरिंग हो रही है, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में पहले से ज्वाइंट हो तो आपको पता होगा ऑलमोस्ट 5 to 10,000 कैंडिडेट्स का ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है, इससे भी ज्यादा लोगों का सिलेक्शन हो चुका है पर्टिकुलर सिस्टम इंजीनियर एंड ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव रोल के लिए। ठीक है, तो अभी जो न्यू कैंडिडेट्स जिनका सिलेक्शन होने वाला है तो उनके लिए बैच अरेंज करनी होगी, इसलिए टाइम लगता है दोस्तों, क्योंकि आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है, ट्रेनिंग के बाद आपको प्रोजेक्ट अलॉट होता है, तो उसके लिए आप उनको सभी चीजें मैनेज करनी होती है, इसलिए वेट करना पड़ता है आपको। ठीक है, कुछ कुछ चैनल ऐसा बोल रहे हैं कि सीएस कैंडिडेट्स को भेज रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैंडिडेट को भेज रहे हैं, डिप्लोमा को भेज रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो टीसीएस की इन्फोसिस की बिजनेस रिक्वायरमेंट पे, इन्फोसिस की जब दोस्तों जब रिक्वायरमेंट्स होगी वो आपको भेजेगा, वो ये नहीं देखेगा कि आप सीएस कैंडिडेट हो या इलेक्ट्रिकल कैंडिडेट हो, क्योंकि आपका पोजीशन तो सेम ही है ना। अगर हो सकता है कि जो मैकेनिकल या सिविल या दूसरे ब्रांचेस वाले कैंडिडेट हो, नॉन आईटी कैंडिडेट्स हो, उनके लिए हो ये क्राइटेरिया हो सकता है, क्योंकि उनको जैसे कुछ नहीं आता है कोडिंग के बारे में, तो हो सकता है उनको ज्यादा यहाँ पे ज्यादा ट्रेनिंग देनी पड़े। लेकिन आप सभी ने सेम इंटरव्यू क्रैक किया है, सभी ने सेम असेसमेंट क्रैक किया है, तो ये सब क्राइटेरिया उतना ज्यादा मैटर नहीं करता, तो डोंट बिलीव इन एनी सच न्यूज। ओके, सो ये चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, आपको किसी पर भी बिलीव नहीं करना है, वो भी बिना सच जाने। ओके, तो ये सीधी सी बात है। अब बात कर ली जाए इन्फोसिस इंटरव्यू नॉट शेड्यूल, इसका मैं आपको क्लियर आंसर दे देता हूं, और यहाँ पर ये जो आंसर होने वाला है ऑनेस्ट एंड फाइनल आंसर होने वाला है। इसके बाद में आपको इसी चीज के बारे में सेम सेम वीडियो बनाकर नहीं बताने वाला, क्योंकि फिर मैं वीडियो बना देता हूँ, लोग देखते नहीं है, फिर मुझे सेम क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, सो इन्फोसिस इंटरव्यू नॉट शेड्यूल। सो इन्फोसिस का इंटरव्यू की बात कर लीजिए, तो अगर आपने इन्फोसिस की असेसमेंट जो है वो क्रैक किए, इन्फोसिस का असेसमेंट का आपको असेसमेंट के बाद आपको मेल आया है कि यू हैव क्लियर द इन्फोसिस असेसमेंट एंड यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर इन्फोसिस इंटरव्यू। ओके, अगर ये आपको मेल आया है, जो कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को आया है, तो इसका मतलब यही है, उन्होंने वहां पे सिंपली मेंशन किया है इन्फो यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर इन्फोसिस इंटरव्यू। इसका मतलब क्या है, आप इन्फोसिस इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड हो गए हो एंड योर इंटरव्यू विल बी शेड्यूल सून। टाइम लगता है, आप यूनिवर्सिटी से ही पढ़े हो तो आपको ही पता है कि यूनिवर्सिटी के रिजल्ट को कितना टाइम लग जाता है, फिर अगर किसी का बैकलॉग एटी केटी हो तो उसके रिजल्ट के लिए, उसके एग्जाम शेड्यूल के लिए कितना टाइम लग जाता है। और ये जो एक कंपनी है जो कि आपको जॉब प्रोवाइड कर रही है, तो यहाँ पर तो टाइम लगना ऑनेस्ट सी ऑब्वियस सी बात है। और साथ साथ इतने सारे कैंडिडेट, इतनी ज्यादा मास हायरिंग हो रही है, तो डेफिनेटली टाइम लगना बनता ही है। आप देखो, और बहुत सारे कैंडिडेट्स का कहना यह था कि शुड वी वेट और शुड वी मूव ऑन।
भाई तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन है मूव ऑन कब करते हैं? जब आपके पास दूसरा कंपनी का ऑफर लेटर हो, चाहे एसेंचर, कैपजेमिनी, टीसीएस का कोई भी दूसरे कंपनी का ऑफर लेटर हो तब, लेकिन तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुमको वेट करना ही होगा, ठीक है? तो ये चीज आप ध्यान में रख लीजिए कि आपका इंटरव्यू शेड, अगर आपको शॉर्टलिस्टेड मेल आया है तो 101% आपका इंटरव्यू जो है वो शेड्यूल हो जाएगा। भले ही 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, लेकिन इंटरव्यू 100% शेड्यूल होगा, ठीक है? और टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलरली आपके जो भी डाउट्स होते हैं मैं क्लियर करता हूँ, लेकिन सेम ही सेम पूछोगे तो मैं कितना आपको रिप्लाई करूंगा? पर्सनली भी बहुत मैसेज आते हैं, लेकिन जो मैं ऑनेस्टली कवर कर देता हूँ वीडियो में, ठीक है? अगर आप जो वीडियो में मैंने कवर नहीं किया है वो क्वेश्चन के आप पूछोगे तो मैं डेफिनेटली आंसर करूंगा, लेकिन ऑलमोस्ट मैं सभी चीजें वीडियो में कवर कर देता हूँ। तो इन्फोसिस इंटरव्यू से रिलेटेड मैंने क्लियर कर दिया है, इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट नहीं होने चाहिए। मैंने बता दिया 101% आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा, ठीक है? सेकंड पॉइंट है इंटरव्यू रिजल्ट नॉट रिसीव। ओके, इससे पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको इन्फोसिस का यहाँ पे ईमेल आईडी देखने मिल जाती है, इन्फोसिस का कस्टमर केयर नंबर देखने मिल जाता है। तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हम ईमेल करेंगे इन्फोसिस को या तो कस्टमर केयर को कॉल करेंगे तो हमें हमारा प्रोफाइल क्या है, हमारा अपडेट क्या है प्रोफाइल का, वो पता चल जाएगा, लेकिन ये चीज नहीं है। इतने सारे लोग वहां पे 50,000+ कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, ठीक है? 50,000+ कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, उसमें से वो आपका प्रोफाइल ढूंढ के आपको बताएंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर आप इंटरव्यू भी करते हो तो वो आपको बता देंगे कि यू शुड वेट, इस तरह से आपको बता देंगे। या तो आप कॉल भी करते हो तो 90% चांसेस तो यही होते हैं कि वो आपका कॉल रिसीव नहीं करेंगे, ठीक है? और कॉल अगर रिसीव भी कर लेते हैं तो ये जो क्लियर इंफॉर्मेशन है वो नहीं बताएंगे। आप इन्फोसिस के जो भी इंप्लॉइज है उनसे बात कर लो। लिंक्डइन पर मैंने बहुत सारे जो इन्फोसिस में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं उनसे बात की, एचआर से बात की। ये जो सिनेरियो होते हैं ना वो डेफिनेटली मतलब 100% जो चीजें होती है वो किसी को पता नहीं होती है, ठीक है? जैसे ही इन्फोसिस की तरफ से रिक्वायरमेंट आई कि रिक्वायरमेंट है तो वो आपको तुरंत ऑफर लेटर भेज देंगे, लेकिन ये अगर रिक्वायरमेंट है ही नहीं तो वो उसका कुछ नहीं कर सकते आप, आपको सिंपली वेट करना होगा, ठीक है? तो आप बार बार जो मेल कर रहे हो इन्फोसिस टीम को या कॉल कर रहे हो तो वो चीजें मत करो। अगर आपका शॉर्ट लिस्टेड हुए हो आप तो आपको आपका रिजल्ट जल्दी मिल जाएगा, ठीक है? आपके पास और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, डिफरेंट कंपनीज में ट्राई करो। अगर इन्फोसिस में नहीं हो रहा है तो आप खुद इरिटेट होके और कंपनी को इरिटेट करके कोई भी मतलब नहीं है, उनको मेल करके कॉल करके, ठीक है? सो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आ जाता है इन्फोसिस इंटरव्यू रिजल्ट नॉट रिसीव्ड। ओके, सो अगर आपने इन्फोसिस का इंटरव्यू दिया है तो आपको 50-50 चांसेस है कि आपको इन्फोसिस का सिलेक्शन मेल आएगा या तो इन्फोसिस का रिजेक्शन मेल आएगा। रिजेक्शन मेल के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं। इन्फोसिस इंटरव्यू में बहुत कम रिजेक्ट करती है। स्टार्टिंग में जो हायरिंग हुई थी वहां तो इन्फोसिस ने मतलब 4 से 5 कैंडिडेट को रिजेक्शन मेल भेजा था, बाकी तो रिजेक्शन मेल भेजा ही नहीं था, सभी को सिलेक्शन मेल भेज दिया था। अगर आपने असेसमेंट क्लियर किया है और आप अच्छी कम्युनिकेशन स्किल रखते हो, आपके पास बेसिक नॉलेज है, तो आपको इंटरव्यू में सिलेक्शन हो ही जाएगा। इन्फोसिस रिजल्ट हो सकता है आपका डिले हो रहा है डिले, मुझे पता है। तो आपको उसके लिए भी बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने इंटरव्यू दिया है तो आपको 100% रिजल्ट तो मिलने ही वाला है, भले वो सिलेक्शन मिले या रिजेक्शन मिले, आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। सो नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। ओके, सो ये चीज भी क्लियर हो गई। थर्ड पॉइंट आ जाता है नॉट रिसीव्ड ऑफर लेटर। सो जैसे ही आप इंटरव्यू देते हो, इंटरव्यू का आपके पास रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद आपको सर्वे मेल देखने मिलता है। किसी किसी को सर्वे मेल मिलता है कि डू यू हैव अ लैपटॉप, ओके, डू यू हैव अ लैपटॉप विद 8 GB रैम, डू यू हैव अ फास्ट इंटरनेट स्पीड। ओके, सो ये सभी चीजें पूछी जाती है सर्वे मेल में। किसी किसी को सर्वे मेल देखने मिल जाता है, किसी किसी को डायरेक्ट ऑफर लेटर मिल जाता है, ठीक है? सो ये चीज भी होती है। और एक न्यू सिनेरियो मैंने अभी देखा है रिसेंटली, किसी किसी को जो है वो ऑफर मिल गया है, ठीक है? इन्फोसिस का जॉब ऑफर मिल गया है लेकिन ऑफर लेटर नहीं मिला है, ठीक है? तो जॉब ऑफर में सिंपली मेंशन किया गया है कि आप 100% सिलेक्ट हो चुके हो। अगर आप सिलेक्ट हो चुके हो इसका मतलब आपको ऑफर लेटर मिलना ही है, उसका कोई भी दूसरा वे नहीं है। सिलेक्ट हो चुके हो, जॉब ऑफर आपको मिल चुका है, इसका मतलब आपको ऑफर लेटर 100% मिलने ही वाला है। तो आप उसके लिए क्यों टेंशन ले रहे हो? मुझे सेम ही सेम सबके मैसेज आ रहे थे कि जॉब ऑफर मिल गया है लेकिन ऑफर लेटर अभी तक के नहीं मिला है, तो क्या ऑफर लेटर मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं, अगर आपको जॉब ऑफर मिल चुका है तो 100% आपको ऑफर लेटर मिलने ही वाला है। डिले हो उससे क्या ही टेंशन लेना है, वो तो आपको सिलेक्शन तो हो गया है, 100% सिलेक्शन हो गया है, ऑफर लेटर मिल ही जाएगा। ओके, सो नो नीड टू वरी कि आपको ऑफर लेटर मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैंने बता दिया जॉब ऑफर मिल गया है तो ऑफर लेटर मिल ही जाएगा, ठीक है? और जिनको जॉब ऑफर भी नहीं मिला है उनकी मैं आपको बात बता देता हूँ कि इंटरव्यू के बाद आपको सर्वे मेल आया, सर्वे मेल नहीं भी आया तो भी आपको डायरेक्ट ऑफर लेटर आ जाता है।
अगर देखो, अगर आपको ऑफर लेटर आता है तो ऑफर लेटर में डेट ऑफ ज्वाइनिंग मेंशन की जाती है, ठीक है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग मेंशन की जाती है, इसका मतलब उस टाइम, उस तारीख से, फॉर एग्जांपल आज की 16th है, तो अगर मुझे आज ऑफर लेटर आता है तो मुझे 25 की डेट ऑफ ज्वाइनिंग दी जाएगी, 10 या 15 दिन के आसपास की दी जाती है। तो उस टाइम से मतलब 25 से मेरी जो है ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज होता है, अगर आपको ऑफर लेटर मिल जाता है तो आपकी ट्रेनिंग शेड्यूल हो जाती है, ठीक है। लेकिन ट्रेनिंग के लिए हो सकता है अगर स्लॉट अवेलेबल ना हो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की हायरिंग हुई है, तो हो सकता है उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद, जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, फिर वो दूसरा बैच लेंगे, जैसे ट्यूशन क्लासेस में होती है, एक बैच होती है, फिर एक बैच के बाद दूसरी बैच होती है, तो इस तरह से हो सकता है, ठीक है। चांसेस ये है कि वो फुल हो चुका हो, वो उनकी ट्रेनिंग जैसे खत्म हो जाएगी, जैसे 2 to 3 मंथ की ट्रेनिंग होती है, जैसे उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपका चांस लगेगा, मतलब जो पेंडिंग कैंडिडेट्स है उनको ऑफर लेटर मिलेगा और उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। ओके, सो ये सिनेरियो होता है, तो आपको इसके लिए भी टेंशन नहीं लेना है, आपको दूसरी भी कंपनीज में ट्राई करना है, आपको एक ही कंपनी के पीछे नहीं रहना है। लेकिन अगर आपको जॉब ऑफर मिल गए तो आपको इन्फोसिस में सिलेक्शन हो चुका है, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लास्ट पॉइंट आ जाता है चांसेस ऑफ रिजेक्शन। ओके, सो रिजेक्शन की बात 50-50 है, कभी भी आपको रिजेक्शन मेल मिल सकता है, इंटरव्यू के पहले, इंटरव्यू के बाद। ओके, कभी भी आपको रिजेक्शन मेल मिल सकता है, लेकिन एक बार आपको जॉब ऑफर मिल गया तो रिजेक्शन के चांसेस जीरो है, आपको रिजेक्शन नहीं मिलेगा। और रिजेक्शन ऑब्वियसली बात है, अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते हो इंटरव्यू में, या तो आपने असेसमेंट में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, तो आपको रिजेक्शन जेन्युइनली मिल सकता है, उसमें कोई भी बात नहीं है। लेकिन बहुत, मैं जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, इंटरव्यू के बाद बहुत कम चांसेस होते हैं रिजेक्शन के। ओके, सो नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग एल्स। और मैंने आपको जो बातें बताई है वो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। किसी भी चैनल का कुछ भी सुन के, मतलब बिना किसी रीजन के, जैसे मैं बहुत सारे वीडियोस देखे हैं इन्फोसिस से रिगार्डिंग, कोई भी कुछ भी बोले जा रहा है, तो ये सभी चीजें आपको नहीं सुननी है। जो ऑनेस्ट चीजें हैं, जो प्रूफ के साथ है, मेरा एक्सपीरियंस है इन्फोसिस के साथ, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ और आपको बताता हूँ, ठीक है। सो आई होप आपको सभी चीजें समझ में आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए जिन्होंने भी इन्फोसिस रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट किया है। ओके, थैंक्स।